Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Karkan Education. Today I will going to I will go today I am going to discuss the mechanical engineering objective series for RRB JE, SSC JE, BPSC assistant professor, UPPSC assistant professor, Uttarakhand Public Service Commission lecturer and BPSC assistant professor and lecturer for useful for first strength of material subject and that is practice set 8. हमने अब तक प्रैक्टिस 7 डिस्कस कर चुके हैं. यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट गिवन है, वहां जाकर आप 1 to 7 देख सकते हैं जिसमें हमने 350 क्वेश्चन कवर किए हुए. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं. Two spring having a stiffness 2 Newton per meter and 4 Newton per meter are connected in parallel. The stiffness of a string system is. तो पैरेलल की जब बात किए तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2. दैट मीन्स क्या आ जाएगी 2 plus 4 that is 6. ऑप्शन बी इज करेक्ट. The equivalent stiffness of 3 spring of stiffness K1, K2, K3 are connected in parallel, that is K1 plus K2 plus K3. Option A is correct. A open coil helical spring is subjected to axial load. The stress produced are. Which type of stress produced? तो इसमें हमारा जो होता है shear and bending stress. Which type? Shear and bending stress. In a leaf spring, the length of all leaves are equal? No. The length of all leaves are not equal. That is false. Then question number 5. A leaf spring is supported at, support कहाँ पे रहता है? End पे and loaded at what? Loaded at the center, है ना? Loaded at the center. 5 का A. The rivet are made from ductile material? Yes. The rivet are made of ductile material. For riveting, the size of hole drill in a plate is shank diameter of rivet is what? है ना? जब भी हम रिवेटिंग करेंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा? ग्रेटर होगा, है ना? shank diameter of the rivet is greater. For a 25 mm hole drill in plate, the diameter of rivet shank should be क्या होगा? लेसर होगा, है ना? तो लेसर क्या होगा? That is 23 mm. Then according to Unwin's formula, the relation between diameter of rivet hole D and thickness of plate T is given at D equal to 6 root T, है ना? D equal to that is 6 root T. The rivet are used for fastening, है ना? रिवेट क्या है हमारा? किस टाइप का होता है? तो दैट इज परमानेंट फास्टनिंग, है ना? When one plate overlap to each other and two plates are riveting of two row of rivet is known as, है ना? is known as. तो क्या होता है आपका किस टाइप का? तो डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट. क्योंकि लैप ज्वाइंट किस लिए कहलाएगी? क्योंकि क्या बोल रहा है कि वन प्लेट ओवरलैप टू ईच अदर. तो ये क्या होगा? एक प्लेट इस तरह से रहेगी, है ना? और दूसरा प्लेट इस तरह से आपको रख के और यहां से रिवेटिंग किया जाएगा, है ना? तो दैट इज डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट. When two main plate are kept in alignment, butting, है ना? अब यहां क्या कर रहा है? बटिंग मतलब एंड से एंड कनेक्ट आपका होगा, है ना? एक इस तरह से है और दूसरा आपका इस तरह से. इसके ऊपर एक प्लेट लगा के आपको क्या करेंगे? यहां पे रिवेट कर देंगे, है ना? तो द ज्वाइंट इज नोन एज डबल कवर, है ना? ये क्या हो जाएगा? डबल कवर बट ज्वाइंट, है ना?
तो इस केस में हमारा 12 का क्या होगा, दैट इज डबल. Then in a rivet joint, when the rivet in various row are opposite to each other, the joint is said to be. यदि आपको एक दूसरे के अपोजिट है तो that is called chain riveted joint. In a rivet joint, when the rivet in the adjacent row are staggered in such a way that every rivet in middle of two rivet of opposite row, the joint is said to be diamond rivet. Yes or no? No. In a rivet joint, when the number of rivet decreases from the innermost row to outermost row, the joint is said to be. किस टाइप का ज्वाइंट इसे बोलते हैं? That is called diamond riveted joint. यदि हमारा इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ नंबर ऑफ रिवेट की संख्या कम होगी. The center to center distance between two successive rivet in a row is called, है ना, is called pitch. The center distance between two consecutive row, है ना. The distance between the center of rivet of hole to nearest edge of the plate is called margin, है ना, is called margin. The distance between the center of rivet in adjacent row of zigzag rivet joint is called back pitch. इसको हम क्या बैक पिच कहते हैं? तो गलत. इसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल पिच कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल पिच. The perpendicular distance between the center line of successive row is called pitch. No. तो इसे हम क्या कहेंगे? पिच किसे कहेंगे? तो पिच क्या होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रिवेट इन ए रो, है ना, इन ए रो. सेंटर लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? सेंटर लाइन नहीं, इन ए रो. रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाय shank diameter. Rivet are generally specified by shank diameter. In object of cockling in a rivet joint is make to the joint is leak proof. Leak proof joint के लिए हम क्या करते हैं? cockling process करते हैं. A rivet joint may fail by, है ना. अब fail क्या होगा? either tearing of the plate edge हो जाए, either tearing of the plates across a row of rivet हो जाए, और either shear में rivet हो जाए. तो कुछ भी होगा तो उस केस में हमारा रिवेट ज्वाइंट क्या होगी? दैट इज मे बी फेल. इन ऑर्डर टू अवॉइड टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट द एज, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट इज व्हाट? दैट इज 1.5 डी, है ना, 1.5 डी रखते हैं. ए लैप ज्वाइंट इज ऑलवेज इन ए सिंगल शेयर, है ना. लैप ज्वाइंट ऑलवेज in a single shear. A double strap butt joint with equal strap each, है ना, always in क्या हो जाएगा? That is always in double shear, क्योंकि बट है, स्ट्रैप है, तो उसके ऊपर always double shear. Then the pull required to tear off the plate per pitch length is, है ना, till, तो क्या हो जाएगा? इसमें आपको क्या है? P इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, है ना, दैट इज ये, है ना. देन क्वेश्चन नंबर 27, द पुल रिक्वायर्ड टू शियर ऑफ, और डबल, है ना. डबल मीन्स आपको 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगी, तो इसको आपको क्या है? पाई बाई 2 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ. देन द पुल रिक्वायर्ड टू क्रश, है ना, तो d इंटू टी इंटू सिग्मा सी, क्रशिंग स्ट्रेस, दैट इज क्रशिंग स्ट्रेस. देन द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड और सॉलिड प्लेट पर इंच इज, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज p इंटू टी इंटू सिग्मा टी, क्योंकि टेंसाइल में हमारा कितना लोड है. The strength of a rivet joint is equal to, तो strength of rivet joint क्या होता है? That is minimum value, है ना, minimum value of the
आइदर लोड इन टेंशन और आइदर शियर और आइदर क्रशिंग। तो मिनिमम वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट क्या कंसीडर करेंगे, जिसमें मिनिमम हो। द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवेट जॉइंट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट एस। In calculating the strength of rivet joint in tearing, shearing and crushing, the diameter क्या लेंगे, इस केस में हमें डायमीटर जो है एक्चुअल डायमीटर ऑफ द होल ड्रिल फॉर रिवेट इज यूज। देन क्वेश्चन नंबर 33, the tearing efficiency of the riveted joint is 50%, the ratio of the rivet hole डायमीटर टू पिच डायमीटर। तो आपका क्या है, इस ये आंसर जो है 50% होगा। किस तरह से, तो एफिशिएंसी इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा P माइनस डी अपॉन पी, दैट इज 1 माइनस डी अपॉन पी। तो यही हमारा क्या है, यही तो पूछा है, द रेशियो ऑफ डायमीटर टू पिच, ये P, ये 50% दिया है, तो ये क्या है 1 माइनस 50, तो 50। ए बेल्डेड ज्वाइंट एज कंपेयर टू रिवेटेड ज्वाइंट हैज अ स्ट्रेंथ मोर, है ना। बेल्डेड ज्वाइंट का स्ट्रेंथ क्या होता है, रिवेट ज्वाइंट से ज्यादा होता है। ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट ज्वाइंट आर डिजाइन फॉर दी, है ना। ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करते हैं। वही पैरेलल फिलेट बेल्टेड ज्वाइंट इज डिजाइन फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ, नो दैट इज शियर स्ट्रेंथ। किसके लिए, दैट इज शियर स्ट्रेंथ। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए बेल्टेड ज्वाइंट फॉर डबल स्ट्रैप इज, तो क्या हो जाएगा √2SL इंटू सिग्मा टी। देन क्वेश्चन नंबर 38, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्टेड ज्वाइंट फॉर ए डबल पैरेलल फिलेट बेल्ट इज, दैट इज √2SL, क्योंकि इसमें आपका शियर की बात कर रहा है, तो √2S इंटू L इंटू T, एंड S इज द size or leg of the belt, L is the length of the belt, and tau is the permissible shear stress of that material. Which of the following statement is correct? तो rivet are generally specified by its shank diameter, और बाकी सब क्या है, incorrect है। A pressure vessel is said to be thin shell when it is made of thin sheet, no. Then question number 41, a thick pressure vessel is always used for generation of steam, it can withstand high pressure, yes। हाई प्रेशर के लिए नहीं। a pressure vessel is said to be thick shell when its diameter and तो इट इज कैसे हम करेंगे, इसके रेशियो के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ वॉल थिकनेस ऑफ वेसल टू इट्स डायमीटर इज ग्रेटर देन 1/10 रहेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, थिक। यदि लेस रहेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, थिन। ए प्रेशर वेसल इज सेड टू बी थिन सेल व्हेन रेशियो ऑफ वॉल थिकनेस ऑफ द प्रेशर वेसल टू इट्स डायमीटर इज लेस देन 1.10, है ना। 1.10 से 1/10 से कम रहेगी। If the diameter of pressure vessel is 15 times the wall thickness, the vessel is said to be thick as, क्योंकि क्या है आपको d/t greater than 1/10, that means 15 times हो जाएगा, तो सही है। A thin pressure vessel of diameter d, length L and thickness t and subjected to internal pressure P, the hoop stress will be, तो hoop stress जो है हमारा क्या होता है, PD/2T, है ना, PD/2T। देन थिन प्रेशर वेसल, इसमें अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो क्या होगा PD/4T, है ना, PD/4T। इन थिन प्रेशर सिलिंड्रिकल वेसल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर P, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टू हुप, तो लॉन्गिट्यूडनल टू हुप की यदि हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या है, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल क्या था PD/4T एंड सिग्मा हुप जो था PD/2T, तो ये क्या है आपका हाफ है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, हुप का आधा है। द डिजाइन ऑफ थिन प्रेशर सेल इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड रहता है,
तो हम बात करें किसके ऊपर, तो हुप स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड होता है। द स्ट्रेस इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इन प्रेशर वेसल इज, है ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रेशर वेसल में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, तो ये आपका क्या है, दैट इज हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस इन ए थिन सिलेंडर सेल इज, है ना, थिन सिलेंडर सेल में हुप स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज सर्कमफ्रेंशियल एंड सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 8 के 50 क्वेश्चन किए। यदि इसमें कहीं भी आपको डाउट है तो आप इसमें कमेंट जरूर करें, और यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।